Assalamu alaikum. Welcome to my new video. Today in this video we can discuss the MCQs of the chemistry of chapter chemical equilibrium. So now start from question number 1. Question number 1 is when dynamic equilibrium is achieved. Option A, the reverse reaction stop. Option B, the forward reaction stop. Option C, both forward and reverse reaction stop. Option D, both forward and reverse reaction continue at the same rate. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो एक ही रेट में प्रोसीड कर रहे होते हैं और हमें नहीं लगता कि रिएक्शन क्या स्टार्ट हुआ है या स्टॉप हो रहा है, क्योंकि दोनों रेट्स जो हैं वो सेम होते हैं. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकरिंग एट द सेम रेट, यानी सेम स्पीड के साथ फॉरवर्ड भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है. सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शन जो है वो एट द सेम रेट होते हैं. इसी वजह से हमें नहीं पता चलता कि ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ है या कंटिन्यू है. सो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्टॉप नहीं होता, बहुत रिवर्स एंड फॉरवर्ड भी स्टॉप नहीं होते. ये स्टॉप तब होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होते हैं बट एट द सेम रेट. सो इसी वजह से हमें उनकी पोजीशन या उनका रेट के बारे में पता नहीं चलता. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is a reversible reaction have the following characteristic except. Option A, they proceed in both direction. Option B, they never complete. Option C, product do not form reactants. Again, option D, they are represented as this arrow. This arrow is known as half-headed arrow. Half-headed arrow is the sign of reversible reaction. कोई भी reversible reaction है, for example A plus B, रिवर्सिबल रिएक्शन का ये साइन है हाफ हेडेड एरो एंड दिस फॉर्म C plus D. So it means that A plus B, this is the reactants and these are the products. A plus B can change into C plus D and C plus D again changed into A plus B. Means both reactions are proceeding in this this reaction can proceed in both direction, in forward as well as in reverse direction with the same rate. So ये है रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल, और इसमें से अब एक एक ऑप्शन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, देन वी कैन tell you that which option is in favor of reversible reaction and which is not. So option A है they proceed in both direction. So this is correct because the reversible reaction can proceed in both direction, in forward as well as in reverse reaction, so inverse direction. So this is correct. Option B है they never complete. ये this is also correct, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे और वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे तो ये कंप्लीट नहीं है होगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा. ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, सो इस वजह से इसका एंड पॉइंट नहीं है. इट मीन्स दैट दे नेवर कंप्लीट. ऑप्शन सी है प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन. सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं, क्योंकि दोनों हाफ हेडेड एरो है. दिस एरो शोज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस एरो शोज रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन. And this arrow shows that reactants can convert into products, and this arrow shows that product can form reactants again. So option C is incorrect about reversible reaction. Option D है they are represented by this sign. So this sign is known as half-headed arrow, and this is a sign of reversible reaction. Option C is the correct option of question number 2. Question number 3 is for the given reaction Kc is N2 plus O2 reversible reaction का sign N2NO. इसके लिए हम Kc कैसे लिखेंगे? So Kc is equal to products active mass of the product divided by active mass of the reactant. इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है NO 2NO, 2 मोल्स हैं तो मोल्स को हम पावर में लिखेंगे. सो हम लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ द NO एंड इसके मोल्स 2 है तो 2 को हम पावर में लिख लेंगे ओवर 2. एंड रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, सो N2 एंड O2. ये हो गए प्रोडक्ट्स और ये रिएक्टेंट्स. तो हमारे पास इस रिएक्शन की Kc इक्वल होगी NO पावर 2 डिवाइड बाय N2 एक्टिव मास ऑफ द N2 एंड एक्टिव मास ऑफ द O2. दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द एक्टिव मास. सो ऑप्शन ए जो है ये दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट इन्होंने ऊपर लिखे हैं, प्रोडक्ट नीचे लिखे हैं. ऑप्शन बी जो है वो भी इनकरेक्ट है, यहाँ पर भी रिएक्टेंट्स ऊपर हैं और प्रोडक्ट नीचे हैं. ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है. दिस इज सेम लाइक दिस, प्रोडक्ट ऊपर है और इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं N2 और O2. तो सो दिस इज सिमिलर लाइक दिस. सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ
Kc। इस रिएक्शन के लिए जो करेक्ट फॉर्म ऑफ Kc है वो इसके इक्वल होगा। सो ऑप्शन डी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज। Kc को हम की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं? ऑप्शन ए है द सम ऑफ द टू रिएक्टेंट्स, ऑप्शन बी है द डिफरेंस ऑफ द टू रेट कांस्टेंट, ऑप्शन सी है द रेशियो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी है द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेट कांस्टेंट। Kc हमारे पास इक्वल है Kc इक्वल है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स के। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि Kp डिवाइड बाय Kr मीन्स प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट्स का। सो Kp डिवाइड बाय Kr विच इज इक्वल टू Kc। सो हम Kc की डिफिनेशन ऐसे भी करेंगे कि द प्रोडक्ट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, और हम ऐसे भी करेंगे कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेट कांस्टेंट। टू रेट कांस्टेंट हमारे पास Kp है और दूसरा Kr है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड ओवर रिएक्टेंट्स एंड द रेशियो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज द definition of equilibrium constant. Question number 5 is small value of Kc shows that option A reaction will go in the forward direction, option B reaction will go in the reverse direction, option C reaction is at equilibrium, option D equilibrium will never establish. Kc की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो so it means that 50% of the reaction will be complete. और Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा small हो, very small, so it means that reaction will proceed in forward direction. अगर Kc की वैल्यू हो large, it means that reaction will proceed in reverse direction. So Kc की वैल्यू 1 हो it means that 50% of the reaction will complete. Kc की वैल्यू small हो हमारे पास तो हम कहेंगे ये reaction forward direction में proceed कर रहा है, and अगर Kc की वैल्यू large हो तो it means that reaction will proceed in reverse direction. So यहाँ पर question में है small value of Kc shows that option A है reaction will go in the forward direction. This is correct option of this question. Reaction will go in the reverse direction. This is incorrect because the Kc value is small. Option C है reaction is at equilibrium, so this is also incorrect because Kc value is small, not equal to 1. Option D है equilibrium will never establish, so this is also incorrect. Option A is the correct option of question number 5. Question number 6 is for which of the following option the Kc will have no units. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें Kc की कोई यूनिट नहीं होती? सो Kc का यूनिट हम उसी फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे और उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो उसको कैंसिल करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा वही Kc का यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आप फाइंड करना चाहते हो तो आप लिखोगे Kc इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट हैं हमारे पास NO over 4 एंड वाटर over 6। NH3 के ऊपर पावर होगा 4 और O2 के ऊपर होगा 5। ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 6 और 5 रह गया है। सो इसमें से 5 जो है 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक रह जाएगा। सो हम इसका यूनिट होगा मोल पर dm क्यूब, और 5 के साथ कैंसिल हो गए तो एक ही रह गया, तो इसका पावर 1 है। तो Kc इसका इस रिएक्शन का यूनिट है Kc इज इक्वल टू मोल पर dm क्यूब and so this reaction has unit, so this is incorrect क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि Kc will have no unit। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें Kc का कोई यूनिट ना हो? ऑप्शन बी है कि अमोनिया N2 + 3H2 इज फॉर्म 2NH3। सो इसका यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे? वो भी सिमिलर लाइक दिस। इस फर्स्ट नंबर ऑप्शन का यूनिट है मोल पर dm क्यूब। ऑप्शन ए का यूनिट है मोल पर dm क्यूब। ऑप्शन बी का हम फाइंड करेंगे, सो NH3/2 N2 and H2।
ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/, एक ये वाला हो जाएगा और एक यहाँ से जो रिमेनिंग हो गया है, तो दोनों को हम लिख लेंगे मोल पर dm क्यूब होल ओवर पावर 2। ये आप इसको ऊपर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा मोल -2 क्यूब -6 हो जाएगा, ऊपर जाके ये +6 बन जाएगा। सो हमारे पास इस रिएक्शन का यूनिट होगा मोल -2 dm क्यूब dm +6। सो दिस इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन बी। ऑप्शन सी का यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑप्शन सी का यूनिट भी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। Kc इक्वल हो जाएगा NO पावर 2 डिवाइड बाय N2 इंज O2 मोल डॉट dm क्यूब होल पावर 2 डिवाइड बाय मोल पर dm क्यूब, और इसका भी आ जाएगा मोल ओवर dm क्यूब। ये 2 है, 2 यूनिट्स हैं, सो एंड नीचे भी 2 हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 9 यूनिट। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका यूनिट भी आप इसी तरह फाइंड करोगे जैसे मैंने ऊपर 2 ऑप्शंस का फाइंड करने हैं, और इसका भी आपके पास एक यूनिट आ जाएगा। ये 2 मोल्स पर dm क्यूब हैं और यहाँ पर 4 है, सो 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा यूनिट मोल -2 डॉट dm -6। सो इसका यूनिट भी होगा मोल -2 डॉट dm -6, और इसका भी यूनिट होगा, यही यूनिट है -2 एंड dm -6, और इसका यूनिट है मोल डॉट dm -क्यूब। सो इसका यूनिट नहीं है और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc शोज दैट, जैसे कि पहले MCQs में मैंने बता दिया है कि Kc की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 हो, सो इट मींस 50% ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीट। Kc की वैल्यू स्मॉल हो, इट मींस द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। Kc की वैल्यू लार्ज हो, इट मींस रिवर्स डायरेक्शन। सो यहाँ पर क्वेश्चन में है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc शोज दैट द रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन जो गिवन था वो था स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc शोज दैट, तो स्मॉल के लिए फिर आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पर लार्ज वैल्यू की पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि फॉरवर्ड के लिए हमेशा Kc स्मॉल होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश दिस आल्सो इनकरेक्ट, एंड रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए Kc की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8 is active mass can be defined as option A the total mass of reactant, option B the total mass of the product, option C the total mass of product and reactant, option C concentration of reactant and products in mole per dm cube in a dilute solution. Active mass means the mass which is active. So for example हमारे पास total mass है 100 किसी भी reactant या product का, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 जो है वो 50 can take part in a reaction in specific type of reaction. So we say that this is the active mass, this mass is active in a reaction. उस out of 100 सिर्फ 50 जो है वो यूज हो जाए उस रिएक्शन में हिस्सा ले ले, so उसे हम कहेंगे एक्टिव मास, this mass is active and the reaction. So is active mass means the concentration of reactants and products in mole per dm cube in a dilute solution. कोई भी dilute solution में वो reactants और product का वो concentration in mole per dm cube जो present हो, so उसे हम कहेंगे एक्टिव मास, एंड एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के थ्रू जो है एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड एक्टिव मास मींस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल per dm cube in a dilute solution. This is the correct definition of active mass. Option D is the correct option of question number 8. Question number 9 is for a reversible reaction. This is reversible reaction. This is a Kc form. The equation can be written as हम इस Kc को reaction form में कैसे लिखेंगे? So Kc इक्वल है product डिवाइड by reactant के, तो हम लिखेंगे कि product है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन केसी का फॉर्म ये है एंड द इक्वेशन कैन बी रिटन इज, हम किसी को दोबारा रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे. सो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है. रिएक्टेंट्स को हम लिख लेंगे और रिएक्टेंट्स ए है और बी है और ए की पावर है 3, तो इट मींस दैट 3 मोल्स ऑफ ए प्लस 2 मोल्स ऑफ बी. बी के ऊपर पावर 2 है, सो इट मींस दैट 2 मोल्स ऑफ बी कैन रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम साइन रिवर्सिबल रिएक्शन का लिखेंगे. और सी प्रोडक्ट हमारे पास सी है और इसका पावर है 4, सो इट मींस दैट 4 मोल्स ऑफ सी. 3 मोल्स ऑफ ए प्लस 2 मोल्स ऑफ बी कंबाइन दे फॉर्म 4 मोल्स ऑफ सी. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर्म एंड दिस इज द केसी फॉर्म ऑफ दिस रिएक्शन. सो ऑप्शन ए है 4C, ये इनकरेक्ट है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्होंने गलत पोजीशन पर लिखे हैं. ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मोल्स का और पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मोल्स जो है इन्होंने मॉलिक्यूल्स के जगह पर लिखी हैं. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर मोल्स भी करेक्ट है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की पोजीशन भी करेक्ट है. दिस इज सेम लाइक दिस. सो आपने पहले किसी फॉर्म जो है उसका इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, फिर इसको ऑप्शन के साथ मैच करना है. जो ऑप्शन इसके साथ सिमिलर हो वही करेक्ट ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Question number 10 is the products of chemical reaction between PCl3 and Cl2 is PCl5. This is the reaction. The unit of Kc for this इसका हमने unit find करना है. Similar like above MCQs, Kc आपने लिख लेना है. Product है हमारे पास PCl5 और नीचे है PCl3 और उसके साथ है Cl2. PCl5 की जगह आप लिख लोगे मोल पर dm क्यूब और नीचे भी सिमिलर इसी तरह लिखोगे मोल पर डीएम क्यूब और Cl2 की जगह लिखोगे मोल पर डीएम क्यूब. ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये इनवर्स में आएगा यानी मोल -1 आ जाएगा और डीएम -3 है तो ये +3 हो जाएगा. सो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मोल -1 डीएम 3. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज द यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन. This is the end of my video. See you in the next video. Allah Hafiz.